हमने कहां तक डिस्कस किया था? पहले कहां तक डिस्कस हो गया हमारा? डोमिनेंट कास्ट कंप्लीट हो गया, जजमानी सिस्टम कंप्लीट हो गया, राइट? वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी right caste mobility. As we have already discussed that the British anthropologist always believed that the caste system of India is a closed system, right, which does not have any sort of mobility in this society. But Indian anthropologists, as we discussed that the people believed in the auto-ethnography, right? In that they studied their own society and finally they concluded that caste mobility was a characteristic feature for the Indian society, right? And this mobility was right, an upward and downward movement, right? It always happened in the caste in India, right? Caste upward movement, caste downward movement. And how it started? Right in the Vedic period, and in later Vedic period, there were so many tribes, right, which conquered a huge land area, became a dynasty, and then they became the Kshatriyas, right? First, second, according to Silverberg, as we have discussed, what? Vairagya, right? Vairagya. So two systems were there. One system was tribal, became caste. In Rigvedic period, what were all those? Tribes. In later Vedic period, Varna, and then Kasta. So from tribe to caste. And it was not a process of some centuries. It happened always. Right? These tribes associated together, all together, became a made dynasty and became Kshatriyas. Because at that time, all the rulers were Kshatriyas. So they became Kshatriyas. Right? First was the tribal to caste. Second system was the Vairagya. According to Silverberg, Vairagya was a system of mobility when each and everywhere, like what happened with the lower caste, they were not satisfied with their own status, they became sannyasin, parivrajak, bhikshu, right? Became parivrajak and bhikkhu. So Vairagya was also a system of mobilization, right? Irrespective of the upper caste or lower caste. All were the sannyasins. Belong to upper caste and lower caste. Everybody was a sannyasi. So sannyasi means Vairagya, tribal to caste. These were the example of mobility into caste system. Assimilation of new groups, right? Changing of status. Clear? So this happened in early time. Then giving Kshatriya rank to foreign dynasties. Sakas, Scythians, Kusanas, Parthians, Greek Bactrians, they became the essential part of Indian social system in terms of the caste. And what was the second Kshatriyas? Right? So mobility was always there. And then third mobility, as we discuss, the downward mobility. Right? Downward mobility. Those like Sudra then mixed caste to untouchables. Downward movement was always there. Right? Change. Sometimes change in occupation also. Right? As we have discussed in change in occupation system, that initially
Brahmins, knowledge. Kshatriya, protection. Vaishya, traders. Shudra, artisans. Traders and agriculturists were the cattle rearers. These were the Vaishya. With the course of time, Vaishya became traders, left agriculture, and Shudra adopted agriculture. Change in occupation, and in caste, change in occupation is not allowed, but it happened. It happened. So the change, mobility in terms of the caste as a whole, or elements of caste, or properties or features associated with the caste, they were in the changing mode. They were in the changing mode. Brahman as the ruler, Vakataka, Kanva, Shunga, right? They all were there. Kadamba, they all were there. Nanda, Maurya, Shudra, dynasties. So mobility was always there in terms of occupation, in terms of changing status. It was already there, right? So Indologically, in Indological approach, it can be said that caste system was not a closed system, and internal mobility was always there, but it was not there to change the structure, rather than elements changed, right? Structure was always there. So this was the mobility of caste which formed in terms of Vairagya, in terms of Kshatriya to tribals, other things, occupations. It happened. Then M.N. Srinivas. M.N. Srinivas was very much in the support of caste mobility in India. M.N. Srinivas gave so many different types of caste mobility in India. So first he told through warlords, battles, wars. These warlords became Kshatriyas, right? To M.N. Srinivas, there were many groups or lower caste, right? Lower caste, which through the war, battles, right, and dynasties got this status, achieved the status of Kshatriya. This is achieved status, not ascribed. Achieved the status of Kshatriyas. As we take the example of ये मोबिलाइज हो गए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना। स्ट्रक्चर में तो फिर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि शूद्र ऊपर ब्राह्मण नीचे, समझ रहे हो? स्ट्रक्चर रिमेन है, स्ट्रक्चर तो वही, शूद्र तो शूद्र ही है ना। उसमें से एक ग्रुप उठ के क्या सारे शूद्र ब्राह्मण हो गए? स्ट्रक्चर में कहां चेंज हो रहा है? कास्ट एक सिस्टम ऊपर आया है ना, तो स्ट्रक्चर एलिमेंटल चेंज है। Why they became Kshatriya? Because they adopted the duties, responsibilities, and the rites of passage of Kshatriyas, right? So they became Kshatriyas. ये हुआ through wars. Second हम बात करते हैं by the service of rulers. जैसे कायस्था है, पाटीदार है, ये किसकी सेवा में है? एज वी डिस्कस अबाउट दी गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा. Kayasth was a group which emerged around the ADs, around Guptas, right? These were not the Brahmins, right? These were the accountant, right? And with the increasing of taxation, right, in the AD's time, in the Middle Ancient Indian time, right, these became very prominent, because for the maintaining the record of taxation, you require a whole system, right? And due to this system, one new caste emerged with the name of Kayastha. And these Kayasthas are Mathur, Nigam, Srivastavas. Yeah, these all are the Kayastha, right? Accountant.
So it became a prominent caste in that particular time, right? So, and these caste, and then in the Middle India and the time of medieval India, these became prominent in terms of Marathas, right? Again, the Karnikas, the accountant people, right? And some caste emerged due to an association with the land, like the land revenue system, Chogule, right? Kulkarni, right? These all were the actually Chogule, Kulkarni, these were the people, these were the titles related to the land revenue assessment, and then became they converted into the subcaste group, caste group, right? And Majumdar, right? Majumdar was also a title for ministers. So second, with the royal service, then Patidar and Kayast. Patidar, the land people like Khoot, Mukaddam, Chaudhary, right? Then Payast, in the service of Gaikwad, they became a caste, right? Kshatriyas, right? Some Vaishyas changed their caste. And third is Mahajan, Baniya, Vaishya, राइट? कुछ पाटीदार अपने आप को छत्री बना गए, कुछ इसमें रह गए, कहीं ने अपने आप को छत्री घोषित कर दिया, सेवा में है, पास से हम क्षत्रिय हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए। लैंडलॉर्ड होते आप क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए। ये कर लिए कोई इनकी, बिकॉज दे वर इन द सर्विस ऑफ गायकवाड्स, सो लैंड डोनेशन, बिकेम लैंडलॉर्ड, बिकेम क्षत्रिय, तो अपने आप में छोटे छोटे क्षत्रिय बन गए। हाँ, वो वैश्य हो गए ना, बनिया हो गया, तो बनिया हो गए, श्रीवास्तव तो बनिया हो गए, राइट? और कायस्थ क्षत्रिय हो गए, पाटीदार क्षत्रिय हो गए। तो ये किसकी वजह से? विद द सर्विस। एंड थर्ड वाज गिवन बाय M.N. Srinivas in terms of Sanskritization and Westernization. Two different aspects, Sanskritization and Westernization. Sanskritization is a process where a lower caste, right, tried to achieve the status of a higher caste or upper caste, right? When a lower caste tries to achieve the status of higher caste with the adopting the cultural traits, elements and passage of the upper caste, right, becomes achieve the status of upper caste later, right? So this process is called as Sanskritization. It is a process, not a system. Sanskritization is a process, not the system. So Sanskritization is a process where a lower caste tries to achieve the status of a upper caste and becomes achieve the status. So this process is called the status of a process of Sanskritization. In this process, we have two different culture processes. They have a specific culture thing. They have a specific culture, right? In lower caste, but we are not talking about the caste which are out to this system or called the untouchables. Untouchables couldn't achieve the status of upper caste, right? So Sanskritization was not worked here. These worked with castas in Sudras, right? These people. So what happened, as we discussed? First, Sanskritization, right, is a process of a group or a caste. It is not individual in nature, right? Second, it is all about the cultural process, not the structural. So Sanskritization
is a cultural aspect, not a structural aspect. What lower caste doing? They leave their own culture aspect and adopt the cultural aspect of other caste. Right? So this caste is called a reference class. A reference caste, and this is the caste which refers this caste. Right? So it is all about the Merton's referral group. संदर्भ समूह जिसको बोलते हैं मर्टन का. So this is a referral caste. अब ये लोग क्या कर रहे हैं? इस कास्ट को फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स. अब इन दोनों में फर्क क्या? लाइक इनिशियली टू एम एन श्रीनिवास, द reference group of Sanskritization was Brahmins. But when local study came out, then he realized that the reference group was not Brahmins only. Mainly the dominant caste or specific caste in an area. It can be Brahmins, it can be Kshatriyas, anything can be there. Right? But the main caste of the particular area. So any caste can be a reference group in the upper state. So what lower status does? First, group. Second, they try to adopt the cultural pattern of upper caste in terms of restrictions of women. Right? Dusra, food habit. Then living the non-veg, liquor ban, right? These all right. And adopt this one means say restriction on women, non-veg नहीं खाना है, liquor नहीं लेना है. उनके जैसे social problem क्या होता है? अपर में rigidity ज्यादा है, लोअर में rigidity कम है. तो rigidity को adopt करना, adopting rigidity. राइट वही प्रायोरिटी बनाए रखना है, वो सब कुछ करना है. और इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ अ टाइम बिंग. कभी कभी बहुत लंबा इंतजार होता है. सो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड विद द टाइम थिंग. कभी 5 साल लगे, कभी 50 साल लगे, कभी 100 साल लग गए, कभी 200 साल लग गए तुमको, बट करते रहना होता है इसमें. सेकंड होता क्या है कि बेटर इकोनॉमिक स्टेटस जरूरी नहीं कि आपको एक अपर कास्ट में कन्वर्ट कर दे, जरूरी नहीं होता. राइट? कई बार बहुत सी चीजें जरूरी होती. लाइक वी हैव सो मेनी कास्ट विच वर गुड एट इकोनॉमी. जैसे आर्टिसंस थे, राइट? बहुत अच्छे इकोनॉमिक स्टेटस में जी रहे थे, बट उनके पास में वो प्रोसेस रेपुटेशन नहीं था जो इनको यहाँ पे रन कर दे. जैसे तेलियो ने सूर्य मंदिर बनवाया था, अगर आपको याद हो तो. राइट? मंदसौर का सन टेम्पल जो बनाया था ना, जो सिल्क वीवर्स थे उन्होंने मंदिर बनवाए हैं, दान किए हैं. राइट? तो ये सब जो चीजें बनी हैं, जो सिल्क वीवर्स जो टेम्पल बना रहे हैं, सन टेम्पल बना रहे हैं, या एक जो ऑयल रिफाइनर्स का एक ग्रुप आता है वो मंदिर में दान देता है, तो दे हैड गिल्स बहुत मजबूत थी उनकी. बट टर्नअप आसान नहीं था. सोशल टैबू स्टेटस बहुत पावरफुल थे, तो उसके पीछे कोई फोर्स चाहिए था. जैसे पॉलिटिकली काफी मजबूत है, इकोनॉमिकली मजबूत है, तो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहे. फिर नंबर इंपॉर्टेंट रहा, उसके बाद वो टर्नअप कर पाए. तो संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें काफी चीजें काम करती है. एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, दूसरा कल्चर अडॉप्शन है, तीसरा कि इकोनॉमिक तो होना चाहिए बट कंपल्सरी नहीं कि हो ही जाए, इकोनॉमी होनी चाहिए मजबूत. फिर पॉलिटिकल स्टेटस काफी अच्छा होना चाहिए, नंबर्स ठीक होना चाहिए आपका. ये सब मिलके आपको संस्कृताइजेशन सिस्टम में लेके जाती है. राइट? सो संस्कृताइजेशन इज ए प्रोसेस विच वॉल हिंदू सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी में हमेशा से रहा एज ए रेफरेंस ग्रुप इन ए कास्ट सिस्टम. राइट? इसके साथ साथ एक सिस्टम और रहा आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया, दैट वाज वेस्टर्नाइजेशन. राइट? अब संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं. जैसे कोई पूछे कि व्हाट वर द फैक्टर्स फॉर द संस्कृताइजेशन, क्या फैक्टर संस्कृताइजेशन का? पहली बात तो फैक्टर आपको ये चाहिए, इंटरेक्शन. राइट? क्यों?
कि इफ यू डोंट हैव द ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने ग्रुप को जानोगे कैसे? क्लियर? सो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, राइट, इन सब ने बराबर सपोर्ट किया संस्कृताइजेशन। क्योंकि मान लो आपका एक संघ है, आप यहां पर रह रहे हैं, आपको नहीं पता दूसरी जगह लोग कैसे हैं, आप वहां गए तो आपको पता लगा आप जैसे लोग वहां भी रह रहे हैं, आपने आपस में बातचीत की, एक दूसरे का ग्रुप बनाया, फिर आपने एक संघ बनाया, एक महासंघ बनाया। सो नाउ यू आर गुड एट नंबर, राइट? आपका एक महासंघ है, आपका बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, आपको फिर अपने महासंघ के अंदर फंड मिलता है, तो धीरे धीरे आप एक इंटाइटी के रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाता। जैसे नाडार महाजन संघ, राइट, एक तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ा सिस्टम बन के खड़ा हुआ था, कुर्मी क्षत्रिय महासभा। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू मीट द पीपल ऑफ द सेम कास्ट, ऑफ द सेम ग्रुप, धीरे धीरे आप उसको एसोसिएट करते हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तब आप दावा करते हो कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रेस, फ्रीडम। ये सारी चीजें जब उठ के आई, तब इन सब ने इस संस्कृताइजेशन को और ज्यादा इंकरेज किया। और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन मॉडल किस पे काम करता है? इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब वो किस फॉर्म में हो रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, अ लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट, राइट, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट विद द इंडियन सोसाइटी, विद द ब्रिटिश सोसाइटी। जो कल्चर, ब्रिटिश कल्चर आपका इंपैक्ट हुआ, वो इंपैक्ट किस फॉर्म में बाहर आ रहा है? किस फॉर्म में आ रहा है भैया? इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, तो किस टर्म में था? ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ आर रूरल सिस्टम, राइट। उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज किया। क्यों? लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज ऑन दी होल सिस्टम एंड सेल्फ रिलायंट इंडियन विलेज चेंज्ड। हम एक टर्म मॉडर्नाइजेशन आता है, एक टर्म वेस्टर्नाइजेशन आता है। एक्चुअली श्रीनिवास वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन से ज्यादा सब्जेक्टिव मानता है। वो कहता है मॉडर्नाइजेशन इज ए सब्जेक्टिव टर्म, बेटर टर्म इज वेस्टर्नाइजेशन, बिकॉज व्हाई वी became aware about the western world through the Britishers, not by Americans. हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में किसके थ्रू पता लगा है? क्या अमेरिकन, स्विट्जरलैंड वाले, हंगेरियन, बुल्गारियन यहां पे आए? तो वेस्टर्नाइजेशन के मॉडर्नाइजेशन, दैट वाज थिंग। उसने कहा मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड इज एक्चुअली अ सब्जेक्टिव वर्ल्ड। वेस्टर्न, बिकॉज वी came into the contact of the western world through Britishers, so we can say westernization a word, not modernization, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हम इन्फ्लुएंस हुए। मॉडर्नाइजेशन का एलिमेंट तो हमने अपने आप को तब कहा when we became westernized, so westernization was modernization in later stages। तो उनका वेस्टर्नाइजेशन एब्सोल्यूट वर्ड है, उसी से तो मॉडर्नाइजेशन की बात करोगे आप। तो आपका ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, तो इसमें वो क्या लेके ले रहा था? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ information technology, introduction of communication technology, information of press, information of law, information of secularism, information of क्या बोलते हैं उसको, western education, press, freedom in the Indian society, right? इसके अलावा a life which was based on materialistic life rather than spiritual life, right? More artha, less moksha, right? So materialistic life, individual life, rights and duties, liabilities, responsibilities, socio-religious movements क्या थे? If we talk about the social religion, what was the cause behind the social religious movement in India? Right? How? What was the factor behind social religious movements? Impact of colonialism, right? Impact of colonialism. अगर मैं सिंपल तुमसे बात करूं तो जब हम चेंजेस की बात करेंगे तो चेंजेस हुए हैं ना, कुछ चेंजेस देखो। इफ यू टॉक अबाउट द चेंजेस, तो पहला चेंज तो हो सकता है डिलीशन का,
डिलीशन का चेंजेस हो सकता है, चेंजेस विच डिलीटेड सम थिंग्स इनटू आवर सोसाइटी, लाइक सती प्रथा. सती custom was prevalent in Indian society. Due to westernization, banned. राजा राम मोहन रॉय, ऑलकट के साथ में 1833 एक्ट, राइट. सो इट वाज आल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया, राइट. कुछ चीजें आप कुछ ऐसी हुई जैसे सिंथेसाइज कर रहे हो, कैसे कि आपके एक नए फॉर्म में चीजें बाहर आई, जैसे जॉइंट फैमिली किस में कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज में. So changing the structure of families, then family according to the residence. हमारे यहाँ पे फैमिली रेजिडेंस के हिसाब से थोड़ी होती थी. जॉइंट फैमिली एक जगह, हमारा तो एक ही कंसेप्ट था. इंडियन सोसाइटी का बेस क्या है, जॉइंट फैमिली. जैसे वो कौन बोलता है कि इंडियन सोसाइटी में जॉइंट फैमिली ही फैमिली का कंसेप्ट है, किसने कहा कि in Indian society, nuclear family, joint family, nothing is that. Family means joint family. ये बोलता ना, घुरिया बोलता था कि family means joint family. यहाँ कोई और कंसेप्ट है ही नहीं तुम्हारे पास में. So अब हम ये कह सकते हैं कि if we talk about the westernization में क्या होगा, change in social structure, change in society. westernization के पीछे ये सारे सिस्टम आएंगे. First, emergence of social religious movement. Emergence of political awareness, right? Then Western education, new administration, right? उसके बाद में political awareness in India, movement, freedom movement, ये सब westernization है. ये सब क्या है? Western influence of westernization. इससे पहले monarchy के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? If we talk about कि नहीं ये सब indigenous थे, but कोई factor तो रहा होगा ना? Without factor is it possible? ये possible है कि किसी फैक्टर के बिना कुछ हो जाए. सो हम जिसको बोलते हैं ना कि चाहे वो इनडायरेक्ट वे में रहा, बट दीज वर द फैक्टर्स ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन इंडिया. वेस्टर्नाइजेशन चाहे उन्होंने किया नहीं हो, बट हमारे पे हुआ ना कि व्हेन वेस्टर्न एजुकेशन केम टू इंडिया, वी स्टडीड ऑल द एजुकेशन. विद दैट हमने अमेरिकन हिस्ट्री भी पढ़ी, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी, फ्रेंच हिस्ट्री भी पढ़ी, और हमें पता लगा कि इंडिपेंडेंस क्या है, किस फॉर्म में है, कैसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या होता है. वी केम टू नो अबाउट दैट वन, राइट. यही तो एक तरीका था हमारा कि हम रुके नहीं, हम बढ़ते रहे. वी यूज्ड प्रेस फॉर आवरसेल्व्स. प्रेस जब इंडिया में स्टार्ट हुआ, हमने अपने लिए यूज किया. एजुकेशन को हमने अपने लिए यूज किया, फॉर आवर सेक ऑफ आवर ओन अवेयरनेस हमने यूज किया. बट दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज पीपल ओनली ना. तो वेस्टर्नाइजेशन इज अ कंसेप्ट वेयर कास्ट, वेयर पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, adopt in a new culture, right, or they absorb the elements of new culture due to the acculturation of two cultures, right. और उसके बेसिस हमारे पास में क्या आए थे, बेसिस हमने बात किया, वेस्टर्न एजुकेशन है, राइट, उसके अलावा वेस्टर्न कल्चर है, उसके अलावा लॉ है, रेवेन्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्टेक्ट है. और उससे क्या हुआ, हमारे सोशल सिस्टम चेंज हुए, इकोनॉमी चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, नया थॉट डेवलप हुआ. सो वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन, दीज वर द कॉज ऑफ मोबिलिटी. मोबिलिटी कैसे हो रही है, दैट लोअर कास्ट वर अडॉप्टिंग द संस्कृताइजेशन एंड बिकेम द अपर कास्ट. अपर कास्ट पीपल adopted the concept of westernization. So mobility, but not structural, only cultural. ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहे, चाहे वो कैसा भी खा रहे, किसा पी रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रह रहे. जैसे सिंगर बोलता है, मद्रास में उसका स्टडी है सिंगर का, तो इन दैट व्हाट सिंगर पॉइंटेड आउट कि एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं, इसका एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ब्रैकेटाइजेशन और कोष्ठकीकरण. मतलब कि पीपल जो है एक ही टाइम में दो अलग अलग बिहेव करते हैं. कैसे कि लाइक उन्होंने मद्रास में कहा कि व्हेन पीपल लिव एट देयर होम, वो सफेद धोती, सफेद कुर्ता, वो तिलक लगाए हुए हैं, सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, वही लाइफ, वही वेशभूषा, द सेम थिंग. पर जैसे ही उनको ऑफिस जाना होता है, क्या करते हैं, कपड़े चेंज किए, सूट टाई पहने, शूज तैयार, एंड एट ऑफिस, राइट.
और जैसे ही घर आएंगे चेंज। सो लाइफ जो है एक्चुअली उनकी नॉर्मल लाइफ में दोनों चीजें चल रही है, राइट? आपको एक स्टैटिक लाइफ भी दिखाई देगी और एक डायनेमिज्म भी दिखाई देगा, एक चेंज दिखाई देगा और एक क्या दिखाई देगा, नो चेंज और स्टेटस क्वो, कि जब वो घर में होते हैं तो वैसे ही बिहेव करें जो सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं, राइट? वो धोए कपड़े पहनने हैं, किसी ने हाथ नहीं लगाना है, किसी को छूना नहीं है, मंदिर जाना है वैसे ही जीना है, इसको छूना नहीं, इसको छूना नहीं, राइट? और जैसे ही काम पे जाते हैं लाइफ हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली। ये भी तो दिस सेंसिटाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, दिस मॉडल इज मॉडल अबाउट दी। अब इसकी जगह जैसे गोल्ड था, मजूमदार थे, मदान थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जोगेंद्र सिंह सर जो है मेन, जोगेंद्र सिंह था, गोल्ड था, वो बोलते नहीं, मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्न का मतलब होता है इंटेलेक्चुअलिटी। मॉडर्न का जो बेस है वो है इंटेलेक्चुअलिटी, रेशनलिज्म, लॉजिक, राइट? तीन बड़े थे, इंटेलेक्चुअलिटी, रेशनलिज्म, लॉजिक और सेकुलरिज्म। सो state will establish, right, on the basis of secularism, intellectuality, rationalism, right? ये सबसे बड़ी बात कहता है, और सबसे बड़ी बात है लॉजिक। सो लॉजिक, रेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअलिटी, सेकुलरिज्म, ये इसका बेस बना मॉडर्निटी का। सो मॉडर्नाइजेशन इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस, वेस्टर्नाइजेशन वाज ऑल अबाउट the adaptation of culture traits with new thoughts. Modernism is all about the rationalization, logic, secularism, means a life based on science, a life based on logic, interpretation. So modernization is all about logic and interpretation. Rationalization, all about modernity. How much you are aware to think things about things with the logic, interpretation, observation. That's what the modern is. So Yogendra Singh basically focused on modernization, right? Not the westernization, it was the modernization. Modern means change in thought, right? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप जीन्स पहन रहे हो बट आपके विचार वही है, तो क्या ये चेंज है? आपने खाना चेंज किया बट थॉट चेंज नहीं। आप आज भी आपके घर के बाहर को है तो उसको खाना इतनी दूर से देते हो, चाहे बर्गर भी आपके हाथ में तो बर्गर ऐसे फेंकोगे, क्लियर? आप सूट पैंट पहन के भी आप अपने थॉट को डेवलप चेंज नहीं कर पा रहे, तो ये कौन सी मोबिलिटी हुई? ये कौन सा चेंज हुआ? ये कौन सा अडेप्टेशन हुआ? अडेप्टेशन होता था जब आप लॉजिक और रीजनिंग पे बात करते, व्हाई अनटचेबिलिटी, राइट? व्हाई रिलीजन? सो उसने कहा कि सोशल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है चेंज, एंड इफ चेंज इज नॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू योर थॉट्स, देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेंज? adopting something and become something, different phenomena, right? आपने किसी की तलवार लगे, पहले किसी को आप हथौड़े से मार के मारते थे, अब तलवार से मार रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, चीज तो वही है। चेंज का मतलब चेंज होता। सो ही वॉज मोर अबाउट द मॉडर्निटी। उसने कहा इन टूडेज वर्ल्ड modernization is a concept, not westernization, right? Britishes are not the representation of the whole western world. वेस्टर्न वर्ल्ड जो है आज वो मॉडर्नाइजेशन पे बात कर रहा है, लॉजिक पे बात कर रहा है, रीजनिंग पे बात कर रहा है, थॉट पे बात कर रहा है। आपने देखा है, चाहे वो आपका गूगल हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, ये किस चीज पे बेस्ड है? सेकुलरिज्म, लॉजिक, साइंस, थॉट, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअलिटी, ये की बात कर रहे हो ना, इंटेलेक्चुअलिटी। योगेंद्र सिंह वाज मोर और लेस अबाउट द मॉडर्नाइजेशन, जबकि श्रीनिवास जी क्या कह रहे हैं, इन इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव, नॉट मॉडर्नाइजेशन, कल्चर कॉन्टेक्ट,
So one mobility was happened due to the संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. इसके बाद अगर हम बात करें तो एज वी डिस्कस ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ थ्रू सेंसस between 1891 to 1931 census happened in India. In that census in 1901, right, the in the census the British commissioner made different category of different castes, right, to categorize the whole population. There numerous castes claimed to be the upper caste, right. They provided their historical data, evidences. So out of the so many castes became the upper caste. So it was neither Sanskritization nor Westernization. This is due to the census only. And then last point is all about the polity. Due to the, right, as I already discussed, so many castes we discussed about the Kamma, Andhra, Reddy, Tamil Nadu, Nada, Reddy, Karnataka, Nadar, Tamil Nadu, right? They became, and Kurmi, then what, Mahars. These, due to the political approaches, political achievement, right, became mobilized their status. I would not say they became Brahman or Kshatriya. It was not Sanskritization. It was due to the process of politicalization of castes. So different castes use polity as an instrument of changing the status, became a prominent status. So these castes became prominent in this Maharashtra, in Mahar in Maharashtra became prominent, Nadar in Tamil Nadu became prominent, right? Jatav in Agra became prominent. So these are prominent, but it was not the process of Sanskritization or Western. So these are the dynamics of caste mobility in India, right? Different procedures were there. First, we discussed that caste mobility was all, because caste mobility, how we can say caste mobility is important, because it shows the open nature of a caste system. Otherwise, what say the caste system has a closed status? No, it is a open. Open means achieved. Closed means ascribed. So it is generally said that caste has ascribed status. But scholars try to prove that not. Status is also achieved in caste system. So it works on both, ascribed as well as. So a group or caste can attain the achieved status also due to the various reasons, through wars, through surveys, through Sanskritization, Westernization, through the census, or through the political thing. And why caste mobility is relevant? Because it shows the openness of the caste system. That caste was not a closed group at all. Mobility was always there. With this one, one also word has also started, that was desanskritization. Right? When the upper caste moves downwards. Right? Srivastava actually studied about the status in Jat community, some pairs, right? Sachidanandan in UP, right? In Punjab also, people adopted the culture of Jat community, whether it is Brahman or Kshatriya in that particular area. So this is called the desanskritization. So this is all the part of mobility. So Sanskritization, Westernization, desanskritization, modernization, and all these concepts. So this is called the caste mobility, right? Along with the caste mobility, if we talk about the one more word, because we are talking about the mobility. So there is a concept called as typecast continuum, right? What is this typecast continuum? Two words. One is type,
second is caste, third is according to Belle, Indian society is reflected in three different forms: tribe, caste, peasant. Tribe, caste and peasant. If you see the traditional Indian society, we have tribe system, we have caste system, and we have rural society, means the peasant one, right? So tribe and caste, the two different structure of Indian society, right? At one side we have tribes, the indigenous, Adivasi, Vanvasi, Pahadi. What do we have? Adivasi, Adim Jati, Vanvasi, Pahadi. Right? And at section we have our own Hindu society, the caste system. Two different words, right? At one side we have tribe and second side we have caste. It is always believed that in India we have two extreme poles. One side we have tribe and second side we have caste, and they both are distinct or different to each other. When we talk about tribe, what we think? What do you think about a tribe? What do you think about a tribe? Group of people which have a common territory, common language, common belief, distinct to the mainstream. Distinct to the mainstream, right? A common means isolation, right? A proper language, different belief. So this was. So to Andre Bete, a tribe can be categorized distinct from a proper caste in terms of first isolation, geographical isolation, right? They are aloof or distinct to the mainstream society. Second, they have a specific language or dialect, right? Third, a specific belief, what we call animism or something else, right? Which is not in the traditional society. Clear? So for Bete, tribe and caste both are indifferent to each other. But according to Belle, tribe and caste, they both have continuity to each other. Right? Tribe became caste, and there are so many characters of tribe which are related to the caste. Like if we talk about caste system, Indian traditional caste system, so we know that caste system is actually already enshrined in our text, religious text. We take Vedas, right? Varna Vyavastha, Jati Vyavastha, Varna Dharma, Jati Dharma, everything is in our text. In that we have our own deities, God, belief, religious ceremonies, festivals, everything, right? In that television, there are some elements which are not in our orthodoxy texts. Say I am telling you a Grama Devata, local deity. Do we have any local deity in our religious text? Veda, Purana, Mahabharata, Upanishads में कोई है? And we know in each and every village we have a village deity. आप गांव में घुसेंगे, बड़ा सा पेड़ के नीचे लाल रंग का पत्थर रखा हुआ है, छोटा सा. वो कौन से देवता है? भैरव हो सकता है. कोई देवता का नाम दिया गया है, बट वो भूमिया जी, बाबू जी, अड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी, मंगले. नॉट इन इंडिया, इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह आपको किसी भी गांव में जाने से पहले उसके विलेज देवता की पूजा करनी पड़ेगी. बट दीज देवता और डाइटीज आर नॉट इन आर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट. वो कहां से आए? लोकल बिलीफ से आए ना. दूसरा अगर हम बात करें कि रिकॉग्निशन of tribal shamans, priest and medicine men in traditional societies.
जहां पर कास्ट और ट्राइब साथ साथ रह रही है सोसाइटी में, वहां पर इन लोगों को काफी माना जाता है। लोग अपना इलाज कराने के लिए उनके पास जाते हैं। झाड़ फूंक किससे करवाते हो? ये झाड़ फूंक ओझा करने वाले कौन होते हैं? ये सब यही ट्राइबल पीपल होते हैं, जिनके पास ही लोग जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं ना। सो रिकॉग्निशन ऑफ ट्राइबल समन्स इन द लोकल इन द ट्रेडिशनल सिस्टम, ये क्या बताता है? ये बताता है प्रेजेंस ऑफ ट्राइबल एलिमेंट्स इन कास्ट सिस्टम। क्लियर? सो ये सिस्टम क्या कहता है कि दो चीजें, जैसे हम बात करते हैं कि ट्राइबल्स वर ऑलवेज द पार्ट ऑफ आर टेक्स्ट ऑल्सो। जैसे हम बात करते हैं रामायणा, निषाद राज वाज ऑलवेज देयर ना, जो राम जी के मित्र हुआ करते थे। सबरी भील है, बट क्या राम उनका खाना नहीं खा रहे हैं? आप गौर करके देखो, जो फूड के रेस्ट्रिक्शंस है, क्या वो एक भील और एक क्षत्रिय राजा के बीच में है क्या? जूठे बेर खा रहे हैं, ताजा खाना नहीं है, जूठे बेर है। आप किसी के यहां के जूठे बेर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मींस यू हैव इधर यू डोंट हैव एनी फूड रेस्ट्रिक्शन, और यू हैव अ फूड ट्रेडिशन बिटवीन दीज कास्ट एंड ट्राइब, नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल, राइट? तो इसका मतलब इंडिया में ट्राइब और कास्ट हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे हैं ना। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मेवाड़ स्टेट, राइट? मेवाड़ स्टेट कंसेप्चुअलाइज्ड with the great effort of Bhils with Sisodias। राणा प्रताप सर, काफी बड़ा योगदान दिया महाराणा जी प्रताप के साथ में भील्स ने, राइट? अ स्टेट फॉर्मेशन ऑफ मेवाड़ है। तो ट्राइब और मेन रीजन क्या साथ साथ में नहीं होते थे? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या एक कोलिशन या कोलेबोरेशन होना आसान होता? If the traditional society and tribal society were aloof to each other, were not in contact, why they are here to help Mahana Pratap ji? Right? क्यों? एक दिन में हो सकता है कि कोई आदमी जाए और आप जानो, इसका मतलब they were in contact from several to several years, right? तभी तो वो उनके साथ आके खड़े हुए, मरने जीने को तैयार हो गए, स्टेट बना दिया है। इट शोज ए कंटिन्यूटी बिटवीन थिंग्स, ट्राइब एंड कास्ट। एक आम आदमी के लिए ट्राइब की अवधारणा क्या है? मतलब हम लोग उसको कैसे जानते हैं? अगर हमें कोई कहे कि हमारा पहला कांटेक्ट एक ट्राइब वुमन से कब होता है, बताओ? इफ आई टॉक टू यू, एक ट्राइब वुमन से आप किस रूप में मिलते हो? जैसे गांव में खिलौने बेचने वाले आते हैं, वो यहाँ पे गुदाया हुआ, यहाँ पे गुदाया हुआ, राइट? तो गांव में पहले बच्चों के खिलौने बेचने आते थे। और ये झाड़ फूंक वाले ओझा जी जो होते थे, वो वाले, और ट्राइब आपके कब आते थे? हाँ, जब आपके इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग आते हैं। दूसरा, वनजारे जो आता थे, वनजारास, वो आपके फूड प्रोडक्ट्स लेके आते थे। आप हनी किससे लेते थे? फॉरेस्ट के माइनर प्रोडक्ट कौन लेकर आते थे? ये सब लोग लेके आते थे ना। इट मींस देयर वाज एन एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन पीपल। ये हमेशा से आपके साथ में रहे हैं। सो ये जो अलूफ, जो सेपरेट आइसोलेशन का पार्ट है, ये इंडियन सोसाइटी में नहीं था, हर जगह नहीं था, बिकॉज इंडिया में ट्राइब्स हर जगह रह रही है। अब दूसरा एग्जांपल एक और देता हूं, गुर्जर्स हमारे यहां पे क्या है? ट्राइब है क्या? क्या है? राजस्थान में गुर्जर ट्राइब है या ओबीसी है? राइट? हिमाचल में, कश्मीर में ट्राइब है, राइट? क्लियर बात है ना? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं यही तुमको बताना चाह रहा हूं कि ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम समझो। एज सम प्लेसेस दे आर काउंटेड एज, एंड somewhere they are like
डिपेंड करता है. If you are good at number, you have the elements of caste, you will called as caste. If you have elements of tribals, you will called as tribals. इंडिया में कास्ट ट्राइबल का सिस्टम क्या है? आर्टिकल 341, 342. प्रेसिडेंट राइट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइब एज शेड्यूल्ड ट्राइब. तो वो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है. अराउंड 548 शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑलवेज देयर. 548 scheduled tribes are already there in our Constitution of India. So these are the scheduled tribes scheduled by the Constitution of India through President of India, recommended by the governor of the particular state. Clear? ये हमारे पास आर्टिकल है 2, क्योंकि because we don't have any specific definition for the tribe. मीनाज को क्या कहेंगे? क्या आइसोलेशन है? क्या उनका आइसोलेशन है? ज्योग्राफिकल नहीं है. प्रॉपर लैंग्वेज वही है. देवता कौन है? यही है. पर ट्राइब है. भील्स ट्राइब है, बिल्कुल ट्राइब. कदार ट्राइब है. इरुला ट्राइब है. जैसे हम जाते हैं ओंजे, सेंटिनली, जारवात ट्राइब है. सो एट वन साइड हमारे पास ध्रुव ट्राइब है जो सारी डेफिनेशन कर रही है, बट एक साइड बीच में ऐसी जो जैसे गोंड है, भूमिज है. ट्राइब नहीं, खौस है, ट्राइब नहीं है. पूरे कास्ट हो गए हैं. कौन क्षत्रिय हो गए हैं, राइट? भूमि क्षत्रिय हो गए हैं. खौस अपने आप को ट्रिपो की ट्राइब जो है उनका वैष्णविज्म हो गया है ना. सो ये जो इंडिया में जो सिस्टम है, तो जब बेली जब काम कर रहा था तो बेली ने ये महसूस किया कि ट्राइब एंड कास्ट बोथ आर नॉट सेपरेट टू ईच अदर. At one time they are in continuity. अब देखो, अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ बनाऊं कि ये ट्राइब है और ये कास्ट है, राइट? अब ये ऐसा नहीं है कि ये ट्राइब है और ये कास्ट है. ट्राइब या तो यहां होगी या यहां होगी, है ना. कुछ ट्राइब ऐसी है जिनमें ये कैरेक्टर ज्यादा है, कुछ ट्राइब ऐसे जिनमें ये कैरेक्टर ज्यादा है. बट इन बिटवीन दिस ट्राइब्स आर ऑलवेज देयर. एक सुपर कास्ट सिस्टम है, एक सुपर ट्राइब सिस्टम है, बट इन बिटवीन ट्रांजिशन सिस्टम देयर आर इनॉर्मस ट्राइब which have character of either more tribe, less caste or more caste. This is called tribal caste continuum. And how it happened? The concept of Robert Redfield, right? The folk culture of Yucatan, right? उस पे उन्होंने काम किया था रेडफील्ड ने. तो उनका था फोक अर्बन कंटिन्यूम. फोक अर्बन कंटिन्यूम के जो फोक कल्चर है उसके एलिमेंट्स रूरल कल्चर में होते हैं और रूरल कल्चर के फोक कल्चर में होते हैं, जिसको हम बात करेंगे लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन. तो जो फोक है वो लिटिल ट्रेडिशन है और जो अर्बन है वो ग्रेट ट्रेडिशन है, राइट? जैसे रामायण महाभारत में जो ग्रेट ट्रेडिशन है और जो लोक देवता जो लोक गीतों में वो क्या है? लिटिल ट्रेडिशन है. एंड बिटवीन दिस लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एलिमेंट्स के लिटिल ग्रेट होते रहते हैं. ग्रेट तो लिटिल टू ग्रेट हो जाए तो उसको क्या बोला तुमने? यूनिवर्सलाइजेशन. एंड व्हेन अ ग्रेट कन्वर्ट्स इनटू लिटिल, दिस इज कॉल्ड पैरोकिलाइजेशन, राइट? सो ये कंटिन्यूम है ना. सिंपल देखो ना, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप जैसे लाइक इन किसी भी जगह जाओ, एक बहुत बड़ा घर बनाया आपने 5 मंजिला, उसके बाहर आप एक बड़ा सा मुखौटा टांगोगे, है ना, जो देवता का नहीं होगा, राक्षस का होगा. वो कहां से आया तुम्हारे पास? तुम्हारी कल्चर में कहीं लिखा हुआ है वास्तु में? नहीं, वो ट्राइबल है. वो एक सिंबलिज्म, हमने सिंबल पढ़ा है ना, एक सिंबल है कि राक्षस भगाने के लिए राक्षस को यूज कर, है ना. तो वो एक फोक कल्चर है कि इतना बड़ा घर बनाने के बाद आप उसके बाहर एक काला सा राक्षस का मुंह लटका रहे हो ना. वो कहां से लेके आए आप? ये है ट्रेडिशंस में चलना. मैकिम मेरिट ने किशनगढ़ी पे काम किया था और किशनगढ़ी में उसने बताया था नवरात्रि और सरस्वती देवी के बारे में. उसने कहा नवरात्रि में जो पूजा की जाती है ना, नवरात्रि में वहां पे जो पूजा की जाती है वो ग्रेट का लिटिल बनना है.
और वहां लक्ष्मी पूजा होना, सरस्वती देवी का लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी बनना एक यूनिवर्सलाइजेशन है, और नवरात्रि का छोटे रूप में होना पैरोकिलाइजेशन है। तो किशनगढ़ी का ये सिस्टम उसने दिया था। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा सिंपल, सलूनों का पर्व। तो उसने ये बात बताई थी कि ये एक सिस्टम चलता रहता है कि लोक गीत कब जाके सेंटर का हिस्सा बन जाए, महान का, और महान कब वापस लोकल बन जाए। इसी में आता है ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम। तो बेली को लगा कि एक आइडिया ये भी होना चाहिए, इफ इट इज फोक अर्बन कंटिन्यूम, फोक मीन्स ट्राइबल, अर्बन मीन्स कास्ट सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही कंसिडर्ड द सिस्टम ऑफ फोक एंड दिस। और इसमें मेन काम किया था सुरजीत सिन्हा ने। सुरजीत सिन्हा काम कर रहे थे इस पे भूमिज, उड़ीसा में भूमिज पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने ये सिस्टम दिया था दिस वाला, कि हाउ अ ट्राइब कन्वर्टेड इनटू कास्ट। तो इसमें व्हेन वी शैल डिस्कस इन 3 डिफरेंट एरिया। 2 कंसेप्ट है, हिंदुनाइजेशन एंड ट्राइबलाइजेशन। हिंदुनाइजेशन एंड ट्राइबलाइजेशन। हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? हिंदूकरण, हिंदुनाइजेशन, राइट, हिंदुइजेशन हो। और ट्राइबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर ट्राइबल के कल्चर के लक्षण आए हैं या नहीं है। तो 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक चल रहा है हिंदुनाइजेशन और एक चल रहा है ट्राइबलाइजेशन। हाउ ट्राइब्स आर कन्वर्टिंग इनटू हिंदुनाइजेशन एंड हाउ ट्राइबल सिस्टम आर इन कास्ट। 2 प्रोसेस चल रहा है कि ट्राइबल की कंटेक्ट की वजह से ट्राइबलाइजेशन हो रहा है, और हिंदू सिस्टम की वजह से ट्राइबल का क्या हो रहा है? हिंदुनाइजेशन। अब हिंदुनाइजेशन जब हम एग्जांपल देते हैं तो वी हैव 3 डिफरेंट रीजन्स। पहला रीजन आता है किसका? झारखंड का, राइट। तो वहां पे एक ट्राइब है जिसका नाम है गोंड, राइट। तो गोंड के उन्होंने 2 पार्ट किए, एक वो गोंड जो रांची और पलामू में रह रही है, और एक जो सिंहभूम में रह रहा है, right? Tribes which are living in Ranchi and Palami, they are more towards the caste, means Hindunization. So they became Hindus. उनके देवी देवता राक्षस हनुमान जी अंजनी माता सब वही हो गए। हनुमान जी की पूजा, अंजनी माता की पूजा, वो कहते अंजनी माता हमारे यहाँ गुमला में ही हुई है, हनुमान जी हमारे देवता है। सब देवी देवताओं को मानना, दिवाली होली रक्षाबंधन सब देवताओं को मानना, तो उनका क्या हो गया? Hinduization हो। Same tribe we are talking about, but tribe of Gond which are living in the area of Sibhumangi, it's a typical tribe. Their own culture, own belief, own religion, own myth, वही एरिया। बट रांची पलामू वाली क्या हो गया? हिंदुनाइजेशन, और ये रह गई अपनी ट्राइब के ट्राइब, राइट। तो ये है एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल उसने लिया त्रिपुरा, टोटल ट्राइबल बेल्ट। त्रिपुरा टोटल ट्राइबल बेल्ट है, नाओतिया है, रेंगपोचे है, राइट। वहां पे जो मेन है रेंगपोचे है, अपनी क्या बोलते हैं इसको, रेमपोचे है, नाइजी नाउतिया है, अलग ट्राइब्स थी वहां पे। वहां पे क्या हुआ? मोनार्की, राजा ने वहां पे जो थे वो बन गए माणिक्य। उनकी डायनेस्टी कौन थी? माणिक्य। लेटर इसको उन्होंने किससे मिला दिया? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी हो गए। चंद्रवंशी होने से ये कौन हो गए? क्षत्रिय हो गए। तो वो जो पूरा बेल्ट था वो पूरा बेल्ट किस में बदल गया? बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब राजा ने यहां पे तो जो ट्राइबल की पूजा हो रही थी अब हो रहा है शिव, शक्ति और विष्णु। तो धीरे धीरे वैष्णविज्म जो है इस पूरे इलाके में आ गया। अब जो नाउतिया ट्राइब है या रेंगचा ट्राइब है वो क्षत्रिय का दावा कर रही है, हिंदुइज्म में आ गई, अदर ट्राइब्स अलग हो गए। अब ट्राइब में भी अलग अलग हो गया, जो ज्यादा इंद्रजन के होगा हुआ तो वो क्षत्रिय दावा कर गए, जो कम हुआ वो नीचे रह गए, राइट। तो ये सिस्टम जो है पनप गया, त्रिपुरा का वेस्टर्नाइजेशन। तीसरा इन्होंने एग्जांपल दिया किसका? अपना खासो, या इसको बोलते हैं खौस, या जिसको आपने नाम दिया खासा, राइट। ये कहां के भाई साहब? ये उत्तराखंड के, उत्तराखंड के।
उत्तराखंड में हिंदुइज्म के प्रभाव की वजह से इनमें पूरा का पूरा इनका क्या हो गया, हिंदुनाइजेशन हो गया। पंच केदार क्या है, एक सिंपल केदार है ना, एक पंच केदार है, पंच प्रयाग, ये सब इनके आगे। इनके देवता कौन हो गए, पंच केदार, पंच प्रयाग, ये इनके देवता हो। तो एक ट्राइब का क्या हो गया, क्लियर। तो अब दूसरी तरफ आप देखो, अगर मैं इसी बात को देखूं, जैसे मीनाज है, एग्जाम्पल लो, मीनाज का क्या हो गया, हिंदुनाइजेशन, भील्स हिंदुनाइजेशन। तो जो जो सेंटर में आ रही है विच आर विद द कॉन्टेक्ट, उनका क्या हुआ, हिंदुनाइजेशन मोर और लेस। तो ट्राइब किसकी तरफ झुक गई, राइट। कुछ ट्राइब रही हुई है, कुछ ट्राइब में दोनों एलिमेंट आ गए, और कुछ क्या बन गई है, जैसे भूमिज है, जिस पे सुरजीत सिन्हा काम कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ हिंदुनाइजेशन, इनके अंदर वो सारी चीजें आ गई। और एक तरफ हमने बात किसकी की, ट्राइबलाइजेशन, राइट। अब इस पे काम कौन कर रहा है, इस पे काम के शर्मा सर कर रहे हैं, जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं हिंदुनाइजेशन के साथ साथ ट्राइबलाइजेशन भी हो रहा है। हिंदू सोसाइटी में ट्राइबल चीजें भी अडॉप्ट हो रही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लोक देवता, राइट, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिन मैन और समन्स इन हिंदू सोसाइटीज। तो टाइप, बट जो प्रोसेस हिंदुनाइजेशन का है वो बहुत फास्ट है और ये बहुत स्लो है। दिस इज द ट्राइब कास्ट कंटिन्यूअम, राइट। तो ये कौन सा सिस्टम, वही फोक अर्बन कंटिन्यूम, लिटिल एडिशन, गेट एडिशन, राइट, ये सारे एक ही है। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ अगला कॉम्प्लेक्स आता है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। क्या टाइम हो गया, सेक्रेड। अब सेक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या है, एज वी डिस्कस मालेर, सॉरी कौन है, एलपी विद्यार्थी सर, कहां पे काम किया है, बौद्ध गया। गया कौन सा इलाका है, मगध, मगध का जनपद था, उसमें मेन कल्चर सेंटर कौन था, गया। गया था किन के लिए, हिंदू एंड बुद्धिस्ट दोनों के लिए। हिंदू का पिंडदानम और बुद्धिज्म का अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, इनलाइटमेंट, मोक्ष नहीं है यहां पे, अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट और निर्वाणा, राइट। कहां पे, मेजना नदी, और जिसको फल्गु बोलते हैं, बोधि वृक्षा, गया के अंदर इनको पहली निर्वाणा मिला, एनलाइटमेंट मिला, उसके बाद ये तथागतिया बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ। तो वो एक सेंटर है, उस सेंटर में तीन एक ट्राइंगल बनता है, उसकी एक रिलीजियस ज्योग्राफी है, एक रिलीजियस रिचुअल्स है, और रिलीजियस स्पेशलिस्ट है। ये इसको एक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट। सो टू एलपी विद्यार्थी, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स आर द कॉम्प्लेक्सेस which have a specific religious activity with the proper religious geography and rituals. They are enormous center in India which are sacred complex, right, in terms of right. जैसे मान लो if we talk about the Hindu system में गया किसके लिए था, पिंडदानम। अब पिंडदानम के लिए गया एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी है जहां पर वैतरणी नदी है, इस नदी में ही पिंडदान होता है, अंतिम पिंडदान तुम्हारा गया में होता है। और वहां पर इसके लिए क्या है, क्रियाकर्म, श्राद्ध दान, और उसके लिए कौन है, पंडे, गयावाल ब्राह्मण्स, हमने बात की थी। सो स्पेसिफिक पंडे हैं जो स्पेसिफिक रिचुअल से जुड़े हुए हैं स्पेसिफिक एरिया में, राइट। तो दिस इज द थिंग्स। तो ये कहता है कि एक्चुअली ये इंडियन सोसाइटी का सेंटर है। These sacred complex actually represent the Indian civilization in terms of its geography, rituals and spiritual. The same is with the Buddhism also. Pilgrim center है, फल्गु नदी है, वहां वृक्ष है, लोग आते हैं, रिचुअल्स करते हैं,
वहां पे प्रणाम करते हैं, प्रतीक लेके जाते हैं, वहां पे उनके स्पेशलिस्ट है, बुद्धिस्ट का सेंटर बना हुआ है, राइट। अलोंग विद दिस वो क्या कह रहे हैं, अभी क्या हो रहा है कि नाउ दीज रिलीजियस कॉम्प्लेक्स आर बिकम स्मॉलर, कंस्ट्रिक्टेड। तो जो पहले सारा एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, उसकी जगह कौन आ गया, एक सेक्युलर कॉम्प्लेक्स आ गया। कैसे कि जो खाली पहले सराय और थी, अब वहां पे क्या बन गए, रेस्ट हाउस बन गए हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, मॉल्स बन गए हैं, रिसोर्ट्स बन गए हैं, पार्क्स बन गए हैं, राइट। सो अ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, नाउ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ sacred thing plus secular things, and this represents Indian civilization as a whole. Secularism with sacredness, यही हमारा है ना, religious belief हमारा क्या कहता है, secular and sacred. State shall not have a religion as secular, but it will respect of all the religions. उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उन लोगों की रिस्पेक्ट करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा। सो ये जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है मालेर के लिए, दीज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इंडियन सिविलाइजेशन, राइट। यही काम बाद में हुआ था काशी में। काशी में भी वही बात उन्होंने कही थी, एक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ काशी विश्वनाथ, राइट, एक तरफ अज्ञा बैताल, दो अलग अलग बिल्कुल रिलीजन है, राइट। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पर अलग अलग रिलीजन के लोग साथ आते हैं, रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी कल्चर को बात करते हैं, और ये कल्चर जो है वो अकल्चरेशन यानी कल्चर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर, एंड इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। इंडिया के कल्चर सिविलाइजेशन का मेन ट्रेंड क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी। सो दीज सेंटर्स आर एक्चुअली द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी डेस्टिनेशन है ये, जहां पर अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग आते हैं, रहते हैं, एक दूसरे की कल्चर को जानते हैं, बात करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और पूरे देश में फैलता है। So actually these sacred complex are the representation of Indian civilization and culture. वो चाहे बौद्ध गया हो, चाहे वो काशी हो, ऐसे कई सेंटर्स मिलेंगे आपको, एक नहीं हजारों सेंटर्स आपको कल्चर के मिलेंगे ना। एक दो एग्जांपल दो जहां पर एक कॉम्प्लेक्स में अलग अलग रिलीजन के आपको मिले। वो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स नहीं है, पवित्र सम्मिश्रण नहीं है, सेक्रेड नहीं है। सेक्रेड में डिफरेंट रिलीजन्स एट वन प्लेस विद डिफरेंट कल्चर मीट टुगेदर, राइट, एंड कल्चर ट्रांसमिशन हैपेंस। कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो डाइवर्सिटी चल रही है, सब एक दूसरे कल्चर को जान रहे हैं। इंडिया यही तो है, वी आर द मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल द कल्चर्स, कल्चर डाइवर्सिटी, कल्चर प्लूरलिस्टिक, राइट। कल्चर प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी हमारा मेन नेचर है, कल्चर डाइवर्सिटी, कल्चर प्लूरलिज्म, एंड विच आर द सेंटर्स टू रिप्रेजेंट दिस कल्चर डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, sacred complexes. So sacred complexes actually represents Indian civilization because it is an urban form civilization. ये हमारा सिस्टम। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मुझे बता सकते हो जहां पर ये चीजें हो कि एक जो है आपके ऑर्थोडॉक्सी हिंदू टेम्पल है, एक बुद्धिज्म है या जैनिज्म है, सारे लोग वहां आ रहे हैं। अजमेर में हिंद बट गया, हम कह सकते हैं काशी गया, ऐसे काफी सेंटर इंडिया मिल जाएंगे तुमको। जैसे आपने कहा अजमेर अगर हम माने तो वहां पर आपको दरगाह है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहां पर आपके पुष्कर बहुत बड़ा सेंटर है हमारे हिंदुइज्म का, तो ये आप एग्जाम्पल उठा सकते हो। तो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सेस विच रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर
एंड सिविलाइजेशन इन डाइवर्सिफाइड फॉर्म, इसको उसने अवधारणा दी सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का। समझ में आ गए? अलग अलग रीजन के लोग आना, मिलना, बातें करना, व्यवहार आपस में ट्रांसमिट करना कल्चर को, और साथ साथ में क्या हो रहे हैं, सेक्युलर कॉम्प्लेक्सेस भी आ रहे हैं। तो एज ए होल इंडिया हो गया, डाइवर्सिटी, प्लुरलिस्टिक नेचर, सेक्युलरिज्म, इसलिए इसको क्या नाम दिया, सेक्रेड। और वहां पे कौन कौन से रिलीजियस, एक ज्योग्राफी है, रिचुअल्स है, और ये है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट, राइट। तो लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम, डोमिनेंट कास्ट, जजमानी सिस्टम, और उसके बाद में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं।